Hello students. Okay, today our lecture is for chapter number 1. Our topic is the subset. In previous two videos, we complete the what is set, describe of the set for the two methods. Okay, depends on this sum. Then after equal set, equivalent set, finite set, infinite set, null set, and singleton set. Right. Now we discussed in today's lecture is a subset, right? Universal set is the most two things. Let's start. What is the subset? Okay, it is very simple. A set A is said to be a subset of B. Okay, subset of set B if every elements of A must be in B, must be in set B is called the, okay, A is a subset of B. So A is a subset symbol also equal to B. Okay, all the members of A in must in B set, so it is called A is a subset of B. Clear? I repeat that. What is the subset? A is a subset of B. That means all the members of all the elements of A must be inside B is called the A is a subset of B. So this symbol is a subset, right? Okay, now superset. New things is a superset, but I'll give the one examples of related this. मान लो कि your set is equal to 2 and 3, right? And set B is equal to 1, 2, 3 and 4. It's simple. All the members of A must be in B, so it is called the A is a subset of B, equal to B also. So, clear? It's very simple example. You understand the subset. Okay. Now the second one is, okay, the superset. So simple. If A is a subset of B, then B is called the superset of A. किसका? A का. क्योंकि A के सारे members B में आ जाते हैं, तो B superset हो गया. क्योंकि A के सारे members B में आ जाते हैं, right? So we write the उल्टा. B is a subset of the superset of A. Clear? Okay. Now proper subset importance. Okay, if A is a subset of B and A does not equal to B, समझ रहे हो? A के सारे members B में है, but A और B equal नहीं है, then then A is called the proper subset of B. Clear? Okay, so we write A is a subset of B. Simple. समझ में आएगा? तो सबसेट है, ओके, और A अल्टीमेटली प्रॉपर सबसेट है. तो सीधी बात है, A 1 2 है मान लो, और B में भी 1 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? A के मेंबर सारे B में है ही, तो उसको आप क्या मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, सबसेट और इक्वल सेट कह सकते हो. ओके, सबसेट कह सकते हो, प्रॉपर सबसेट, राइट. बट अगर इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू बी है ना, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर सबसेट. थोड़ा ही चेंज है, यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया, जबकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है. आया समझ में? यानी ए और ए इक्वल टू बी नहीं है, ए और बी के मेंबर सारे इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के तो सारे मेंबर्स बी में आ ही जाएंगे. चलो नाउ यहाँ पे अब universal set is very important as a point of view of the sets. Okay, if there are the some sets under consideration, okay, then there happens to be a set which is a superset, right? तो मतलब जिस सेट के जितने भी आप सेट्स लो, वो सारे मेंबर्स अगर कोई एक सेट में आ जाते हैं ना, तो उस जो एक सेट में आते हैं ना, उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहते हो. क्या कहते हो बच्चों? यूनिवर्सल सेट. So definition say that, okay, it to be happens to be a set which is a superset of the each of the given sets, right? So such a set is known as a universal set for those, and it is denoted by U, right? एक एग्जांपल सिंपली चलो बता देता हूँ आपको. आपने मान लिया आपके पास सेट A है, अभी हमने देखा था कि एक 2 and 3 है, राइट बच्चों? जो सेट B है ना, वो आपके पास है 2 3 4 है, राइट? और मेरे पास जो सेट है वो 1 2 3 4 5 है. चलो क्लियर? यानी A B और C, तो A सीधी बात है कि A के सारे मेंबर्स भी B में, B के भी है, तो A और B के लिए C उनके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट? तो डेफिनेशन में कहा है ना कि इफ देयर आर द सम सेट अंडर कंसिडरेशन, तो अंडर कंसिडरेशन
Okay, happen to be a set which is a superset of one of the given set. तो इन दोनों का ये सुपरसेट हुआ। डेफिनेशन ये है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो बी को क्या कहा जाता है, सुपरसेट। तो यही है, ए के सारे मेंबर सी में आते हैं तो सी सुपरसेट हो गया, बी के सारे मेंबर भी सी में आ जाते हैं तो दोनों के लिए सुपरसेट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। आ गया समझ में? सुपर सीधी बात है, यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंस है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेट एंड ऑल्सो द प्रॉब, राइट। और हम लोग देखेंगे क्योंकि आप प्रॉब 10th में थोड़ा बहुत सीख चुके हो, 11th 12th में बहुत डिफरेंट है, मतलब हायर थिंकिंग पे है, राइट। ओके चलो, अब उसके बाद आया पावर सेट। ये भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर से सम्स बहुत काउंट कर लेते हैं इसकी वजह से। चलो, तो सबसे पहले बच्चों पावर सेट। So the set of all subset of the given set A is called the power set of A, denoted by P of A. Right? The set of all the subset of the given set A is called the power set of A, denoted by P of A. फिर से सबसेट है, इसके जितने भी, कोई भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं ना, ओके, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो समझो कि आपके सेट ए के एलिमेंट्स है कितने, m है, तो पावर सेट क्या होगा, P ऑफ ए इज इक्वल टू 2m। 1 मार्क एमसीक्यू यहीं से आ जाएगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो यू हैव के नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स, तो पावर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या 2⁴, तो दैट मीन्स द 16, इट इज कॉल्ड द पावर सेट। ओके, तो ए आपके मेंबर ढूंढ लिए आपने। चलो, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सीधे बोला कि सबसेट ऑफ द गिवन सेट, कोई भी ए सेट है उसके जितने भी सबसेट है बराबर इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द पी ऑफ ए। तो आप जानते हो कोई भी नल सेट है तो मतलब कोई भी सेट होता है तो उसके दो तो फिक्स है, सेट इज सेल्फ एंड ऑल्सो द नल सेट, इसीलिए हम लोग 2⁴ लिखते हैं। चलो, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट के लिए। इतने सारे सेट्स आपको याद रखने हैं, सबसेट है, सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट है एंड द पावर सेट है, राइट। तो मिक्स ना हो जाए वो भी फोकस करना है आपको इसके ऊपर, इसीलिए बार बार लिखते रहो, पता चल जाएगा। ओके, तो अब ये टॉपिक्स हम शुरू किया है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3। ओके, चलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.3 है यहाँ पे। तो पहला जो है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस है, तो वो हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं। यू हैव द टेक्स्ट बुक, राइट। ओके, सो यू हैव द क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम द लाइन। तो क्वेश्चन 1, आपको सबसेट और नॉट सबसेट ऐसा यूज करके खाली फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, मान लो। तो रीजन भी हम लोग हमें पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 3 4, राइट, एंड दूसरा जो ब्रैकेट आपके पास है वो है 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ सेट है बच्चों। एलिमेंट्स होता तो आप बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास सबसेट है, इतना याद रखना है, इट इज नॉट एलिमेंट्स, पूरा सेट है। ओके, ब्रैकेट ब्रेसिस में है, तो 2 3 4 सारे मेंबर इसके अंदर आते हैं, यस आते हैं, तो आप कह सकते हो इट इज अ सबसेट, राइट। चलो, नंबर 2 ऐसे ही है आपके पास। नंबर 2 बच्चों, मेरे पास टेक्स्ट बुक है तो मैं यूज करता हूँ ABC, मेरे पास सामने और एक एलिमेंट्स है BCD। यू चेक दिस, एक तरफ ABC है, एक तरफ BC है। देखो सारे मेंबर्स है, BC तो है लेकिन A नहीं है, तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ A मस्ट इन B, राइट। सो इट इज कॉल्ड द A इज अ सबसेट ऑफ B, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, A मान लो, A B मान लो सेट, तो नहीं हो रहा है, राइट। चलो, नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। नंबर 3 पे है X इज a स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 इन योर स्कूल एंड X इज a स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सीधी बात है ना, अगर आपके स्कूल में 11 स्टैंडर्ड है तो 11 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हुए, राइट। तो क्या है, सबसेट। तो मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो आप वो इंडिकेट कर देना। चलो, 4th वन बच्चों, और रिलीज करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। X is a circle in a plane and X is a circle and they have the same plane with the radius 1 unit. Circle in a plane, कोई प्लेन के अंदर कोई सर्कल है और a circle in the same plane with the radius 1। सोचो, नहीं है ना, सर्कल उसी के प्लेन के अंदर तो आ ही जाता है ना आपके पास,
राइट। तो क्या करोगे, नॉट सबसेट, क्योंकि रेडियस 1 वाला और ये तो कोई भी रेडियस है, हमें बताया नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट, राइट। चलो फिफ्थ वन बच्चों, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बट आप चेक करते रहना। ओके, उसके बाद है बेटा फिफ्थ, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ सेम प्लेन, राइट। तो सीधी बात है ना, वो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों अलग अलग शेप है, राइट। तो ए भी है, तो इसमें भी क्या आएगा, नॉट सबसेट। सही बात है ना, एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर में ट्राइंगल, तो इसी बोर्ड के अंदर में रेक्टेंगल कर रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ा है कि इसमें आए, राइट, क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा मैं ले सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, चलो ना 6 क्वेश्चंस बच्चों, उसी का 6 क्वेश्चंस है हमारे पास कि x is a equilateral triangle in a plane and x is a triangle in the same plane। ओके, तो 6 के अंदर आपके पास क्या दिया है बच्चों, 6 is a x is a equilateral triangle in a plane is a subset of the x is a in the triangle। ओके, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, तो सही बात है। देखो एक प्लेन है पूरा, अब मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तोड़ा, ओके, तो और इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल है, तो ये प्लेन है, तो प्लेन के अंदर और कोई भी ट्राइंगल, मतलब वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये सबसेट है बच्चों। समझ में आया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसी प्लेन के अंदर है, और ऐसा पूछा है कि एनी ट्राइंगल ऑफ प्लेन, तो हो ही सकता है ना। 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आपके स्कूल के, बराबर, और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो इसी के अंदर आ ही जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या राइट एंगल है, एक इस प्लेन के अंदर कोई भी ट्राइंगल आ सकता है, पर्टिकुलर मेजर नहीं है इसी, गॉट इट। ओके, चलो अभी कंप्लीट कर दिया आपने 7th वन। ओके, तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। बच्चों इवन नंबर्स है ना, क्या है बच्चों, इवन नंबर्स आपको दिया हुआ है, तो मान लो इवन नंबर तो होते ही है, राइट। तो यस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सामने एक तरफ है इवन नंबर सेट है, ओके, इवन नंबर सेट है, और दूसरी तरफ क्या है, ऑल इंटीजर्स, राइट। ऑल है तो सीधी बात है, सेट है। चलो क्लियर, आ गया। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर, समझ में आ गई। ओके, चलो चलो सेकंड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं थोड़ा चेक करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, राइट, एग्जामिन करना है हमें, एग्जामिन वेयर द, बराबर, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन is already given that AB is not subset of BCA, राइट। तो पहले हम इस सिंबल को भूल जाते हैं, पहले आप सोचो कि AB इज अ सबसेट ऑफ ABC, यस सबसेट है, यहाँ पे नहीं दिया, तो सीधी बात है आपका ये फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो ओके, आगे बढ़े बच्चों। नंबर टू क्या दिया है आपको, नंबर 2 के अंदर AE, राइट, इज अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट, क्या है सेट, ओके, AN इज X इज अ वोवेल, ओके, वेयर X, राइट, तो X is a vowel, okay, in English alphabet, yes, ये तो है, तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट। आप लिख सकते हैं ना, ये इज अ वॉवेल, तो ये अल्टीमेटली है, आपने बता दिया, तो ये क्या है, ट्रू। ओके, हमें और तो कुछ पता नहीं है, ओके, ये है कि नहीं। चलो मान लो, तो फर्स्ट जो है, राइट, फर्स्ट सेंटेंस फॉल्स है हमारा, सेकंड तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बहुत सिंपल है, राइट, तो ए है, तो अल्टीमेटली हमें क्या, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो यस ये सारे मेंबर्स इसके अंदर हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 1 3 5, चलो आप ही बताओ इसमें, तो 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 1 3 5, तो सीधी बात है 3 is not a members of this set, right, 1 3 and 5 ये मेंबर मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया।
ओके नहीं होना चाहिए बट यहाँ पे है, ऐसा दिया है, तो इट इज अ फॉल्स सेंटेंस। ओके चलो आगे बढ़ते बच्चों, फोर्थ वन। तो फोर्थ क्या है बच्चों, क्वेश्चंस के अंदर आपके पास फोर्थ है। ओके वेरी गुड। सेट ए क्या दिया, इज अ सबसेट ऑफ ए बी एंड सी बच्चों। तो ए बी सी जो है वो चेक करो क्या आ रहा है बच्चों। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, इसमें बहुत कुछ जानने लायक है, हम लोग अभी करेंगे। ओके बट ये एग्जाम ओरिएंटेड है इसीलिए अभी, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पहलू है। तो ए सेट इसके अंदर आ जाता है, तो यस इज अ ट्रू बच्चों, क्योंकि अगर ये मान लो तो ए सबसेट बी हुआ तो ए के सारे मेंबर्स बी में आते ही है, तो आप कह सकते हो इज अ ट्रू सेंटेंस। चलो क्लियर। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सबसेट वाला सिंबल नहीं लिखते, लेकिन ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला, चलो फोर्थ खत्म कर दिया। अब फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ओके ए एंड ए बी सी। ओके आया 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 क्वेश्चन सुपर आया, राइट इनटू ए बी सी बच्चों, राइट। देखो मैंने बोला था अगर एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स टू आता है, क्या होता है, एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स टू आता है। इधर तो सेट है, ब्रेसिस में दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये फॉल्स हो गया। हाँ देखो ये ब्रैकेट हट जाता तो ये सही हो जाता, राइट, पर ब्रैकेट है तो सबसेट नहीं है, बिलोंग्स टू हम लोग सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते। अंडरस्टैंड, क्लियर द क्वेश्चंस, राइट। ओके तो और एक देख लो, 6 क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड सामने ओके नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स द 36। तो 36 को कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं बच्चों, पता है? ओके एक तरफ जो आपका सेट है वो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ आपका 6 देखो, इसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर, तो 2 एंड 4 ही है बच्चों, राइट। अब सामने देखो यहाँ पे पूछा गया है कि x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 36। तो 36 को कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1, फिर 2 करता है, 3 करता है, 4 के टेबल में आता है, 5 नहीं है, 6 है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है बट 9 में है, फिर 12 3 दैट 6 आप लिख सकते हो, राइट, एंड 36। चलो तो देखो 2 एंड 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो हमें अंदर क्या दिया है, सबसेट, तो यस इट इज अ ट्रू सेंटेंस। चलो क्लियर, इट इज अ ट्रू सेंटेंस। अंडरस्टैंड दिस, श्योर, ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके 2 एंड 4 से बट सारे डेफिनेशन के ऊपर रिजल्टेड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। ओके अंडरस्टैंड, क्लियर, राइट। ओके चलो अब आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या दिया जाता है, सबसे पहले वो थोड़ा बहुत चेक कर लो ताकि आपको ये आसानी रहे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, राइट, क्योंकि आपने प्रॉपर से नहीं पढ़ा है तो ये हेल्प करेगा आपको। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राइट द ऑल द सबसेट ऑफ द, ओके क्वेश्चन नंबर 4, ओके राइट all the subsets, okay, all the subset of the following set of the following sets। ओके बच्चों, ओके तो यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट ओके मान लो कि सेट ए है, कितना दिया है आपको, ओके ए, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसेट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खाली लिखना है राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स, ऑल द सबसेट पूछा है। तो सबसे पहले ओके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबर्स कितना है बच्चों, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ सेट्स एलिमेंट्स, ओके इन अ सेट 1 है, n इज इक्वल टू 1 मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स, ओके नंबर ऑफ मतलब सबसेट ऑफ द गिवन सा, तो नंबर ऑफ आप जानते हो कि 2⁻1 तो कितना आ गया है 2। तो चलो सबसेट्स आर, सबसेट्स कितना है, एक तो नल सेट होता ही है, दूसरा क्या होता है सेट इटसेल्फ, तो यहाँ पे तो हो ही जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते, ये तो सिंगल था,
चलो 2 का देखते हैं, इंटरेस्ट रहेगा आपको। चलो सेट बी नाम देते थे उसको, ए और बी है। तो यहाँ पे बच्चों n इज इक्वल टू कितना है 2। तो आपके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 देन 4। चलो कौन से 4 है, तो चलो सबसे पहले तो नल साइड, फिर ए एलिमेंट्स, ओके, फिर बी एलिमेंट्स एंड सेट इटसेल्फ। काउंट कर लो, हो गए बच्चों 1 2 3 एंड 4। चलो अंडरस्टैंड, क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके चलो 3 का देख लेते हैं। तो एक 3 में बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। चलो 3 बच्चों, एससी सेट नाम दे देता हूँ 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितने 3 एलिमेंट्स है। ओके तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 मतलब 8। लेट्स स्टार्ट। तो सबसेट्स में क्या आएगा, तो आप जानते हो सबसे पहले सर 5, ओके, उसके बाद 1 राइट, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 1 एंड 2, उसके बाद आएगा 1 एंड 3 राइट, उसके बाद आएगा 2 एंड 3 एंड सेट इटसेल्फ राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने मिल गए बच्चों 8 डॉट। ओके गेटिंग इट नाउ। चलो एक मैं सिंपल चीज बता देता हूँ कि ये नल सेट है, तो नल सेट का तो क्या मिलेगा आपको, बराबर। एक क्वेश्चन एक बार मतलब कर लो तो बात खत्म हो जाए। उसके बाद मुझे और एक एग्जांपल्स आपको बताना है राइट। तो एक खुद एक ही है ना, क्यों, तो वो समझो कि 2 रेज टू 0, क्योंकि यहाँ पे n ये तो एम्प्टी सेट का सिंबल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए बाय डेफिनेशन। तो प्रॉपर सेट है वो कितना 2 रेज टू 0 1, तो क्या नल सेट खुद इटसेल्फ राइट। ओके फिर को हम खुद बना देते कि मान लो कि ए सेट इज इक्वल टू ए बी सी है, सेम टू सेम हो जाएगा, क्यों, द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3 राइट। तो पावर ऑफ सेट 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 मतलब कितना आएगा ए, लिख सकते हो वैसे ही, क्लियर। ओके हाँ, तो ऐसे ही बना दो, खाली 1 ए बी सी 1 2 3 की जगह पे ए बी सी हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी आप बदल के आ सकते हो। ओके आज को टाइम लिमिट को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पे ही लेक्चर छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे बहुत बड़े होंगे, ओके, क्योंकि जो इस चैप्टर एक कौन सीक्वेंस रखना है, इसीलिए अब थोड़े बड़े लेक्चर्स हम लोग इनपुट करेंगे। ओके लेकिन तब तक इसकी प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेशन की एक परफेक्ट नॉट बनाओ। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है वो हैज़ आपकी स्किल के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay, we will with the next video, okay, and with the complete this exercise. Okay, till then and bye bye.